everyone, you are watching Sign Up Presents Chit Chat with Shreya and I am your anchor Shreya Singh Rajput. So this is the second episode जहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी कहा जा सकता है या ऐसे लेजेंड जिसने झारखंड की लैंड पे एक नया नाम रोशन किया है और एक नई चीज़ का आगाज किया है। जी बिल्कुल, वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि वो फाउंडर है झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है जिसके फाउंडर ऋषि प्रकाश सर जी हैं, जो 2080 से इसका सफ़र शुरू हुआ था और वो लगातार 2 साल से चलता आ रहा है और 2020 उसका तीसरा साल होने वाला है। दोनों सालों में सर एक लेजेंड की तरह अकेले खड़े होकर इसको ना ही फाउंडर की तरह इसको लाया है, बल्कि इसमें सारे काम सर ने अकेले मैनेज भी किया है। So let's welcome with a big round of applause none other than our legend, Mr. Rishi Prakash Mishra. नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के हमारे इस एपिसोड में आपका, और हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं सर दैट यू आर विद अस टुडे। चलते हैं पहले सवाल की ओर कि सर व्हाट आइडिया मेड यू थॉट टू ऑर्गेनाइज सच अ बिग फिल्म फेस्टिवल इन द लैंड ऑफ झारखंड? Well, Shreya Singh Rajput. Actually, I don't know why, because I'm a filmmaker from Jharkhand and I'm a filmmaker of Bollywood also. I directed and written some films in Bollywood. Being a Jharkhandi, I felt myself responsible for the development of regional films or films, global films in Jharkhand. Actually, in this thought, I found that in all over world, there is a international film festival. Understand? When in America, in Russia, in China, or any country, in India also, in every state, there is an international film festival for the development of local film industry. To showcase worldwide global films to the regional filmmakers for the development of local films. So that I planned in 2018 that why should I should not organize this film festival. In the meantime, I was nominated as a member of Jharkhand Film Development Board, and when I have seen that film policy of Jharkhand, I found that it is in film policy of Jharkhand state that the state will organize international film festival for the same purpose. Then I approached there, then I discussed, but because the officers, bureaucrats are only doing their work. They are not keen interested to do, and they are not keen interested to dedicate themselves for the development of society. Actually, it is very frankly I am speaking. So that I planned Jharkhand International Film Festival, and it was a grand success program in 2018, then again in 2019, and it is our bad luck in 2020. You will be surprised here. From 48 countries from all over the world, more than 500 short films, animation films and feature films are submitted. In this pandemic. But in this pandemic, but due to this pandemic, we are just planning to organize it online, and we are in connection and we are in discussion with some big channels, and let us see how we will organize it. But positively, it will be worth for the local filmmakers of Jharkhand. As we saw, sir, in these 2 years which you have held, 2018 and 2019, many local filmmakers were awarded in the stage, right? Yes. But sir, there was a severe question was raised in 2019 film festival, that was a second film festival, that awards were not earned, they were bought with price of money. What's the secret behind it, sir? What's the actual scenario you would like to share today? Actually, Shreya, it happens always
in all the awards. And only one person was behind this conspiracy. He was my good friend. He was in the organizing committee. He is a director in Bollywood, and he was expecting from me that I will list his name for an award. I am also a director. Should I list my name for the award? No, it is not. It is not justified. True. So, and it is not fair. So, when he came to know that his name is not in award, and Arbaz Khan was on the stage and he was giving awards to so many legendary personalities, I don't know why he went out from the venue and he shouted in front of media. I came to know these things after program, after award After the evening. award Yeah. And especially in the morning when I came to know from local newspapers that it was happened. True. No problem. But there was no conspiracy in our award planning. There is a jury member team, and it is led by Gautam Ghosh. He is a legendary director. Okay. In Kolkata. And so I am fully committed with the society, and I am not earning from this big event. Okay. Even I am losing something. So I am very happy because I am doing my work with full honesty and dedication. Yeah. And I will do it, I will continue it always. Well, that's a good spirit, sir, and it's very good to know that we Jharkhand people have seen such a beautiful film festival award and such a huge film festival award continuously twice in a row. Well, it's a big achievement, sir. So I would like to know, sir, what difficulties you have faced while conducting the first film festival in 2018. So many difficulties I faced, Shreya. अगर आप बोले तो हिंदी में बात करें? जी सर. एक्चुअली क्या है कि कनेक्ट ज़्यादा होंगे लोग, हिंदी में लोग समझ पाएंगे कुछ ज़्यादा. ठीक है. तो क्या है कि आपका सवाल था कि क्या क्या परेशानियां हुई आपको. एज आई टोल्ड यू बिफोर, द ऑफिसर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, दे आर नॉट डेडिकेटेड टू देयर वर्क, टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दे आर ओनली डूइंग देयर वर्क टू रूल. जो रोजमर्रा का जो काम है, जो बना हुआ सिस्टम, वही काम करना चाहते हैं. वो कुछ भी इनोवेटिव, क्रिएटिव नहीं करना चाहते हैं. मैं खुलेआम कह रहा हूँ इस मंच पर आपके, वो लोग कुछ भी क्रिएटिव नहीं करना चाहते हैं. और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं. बहुत लोग क्रिएटिव करने वाले लोगों की लेग पुलिंग भी करने लगते हैं. और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे झारखंड के एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सजल चक्रवर्ती, जो रांची के डीसी भी थे. ही वॉज वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव पर्सन, डाउन टू अर्थ पर्सन. लेकिन आज वो झेल रहे हैं, वो उनका दिल जानता है और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं. एनीवे, तो मैंने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया. दे रिफ्यूज. नो, व्हाई वी विल ऑर्गेनाइज झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हियर. हाँ, तो मैंने उनको दिखाया कि सर ये तो फिल्म पॉलिसी में है, हमें करना चाहिए. ओके, हम लोग बाद में देखेंगे, ताकि अभी से मामला हटे भैया, अभी तो यार पिंड छुड़ाओ. एनीवे, मैंने ऑर्गेनाइज फिर करने के लिए प्लान किया. फिर मैंने बहुत सारे बॉलीवुड, क्योंकि अट्रैक्ट करना था दर्शकों को. हमारे जो झारखंड के जो जितने भी यहाँ के आर्टिस्ट हैं, या बिहाइंड द कैमरा आर्टिस्ट या इन फ्रंट आर्टिस्ट, तो उन सबों को जो लीजेंडरी हैं, उन लोगों को भी मुझे ये प्लान मैंने किया था कि उन लोगों को भी अवार्ड देना है कुछ लीजेंडरीज के हाथों. तो बहुत सारे बॉलीवुड के लीजेंडरी डायरेक्टर्स वगैरह आए और 3 दिन का ये बड़ा समारोह रहा और 150 फिल्मों का हम लोगों ने प्रदर्शन किया और 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पूरे कार्यक्रम को 3 दिन तक देखा. बच्चों की फिल्में भी चली, चिल्ड्रन फिल्मों का भी हमने प्रदर्शन किया. यहाँ के जितने स्कूल वाले हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को भेजा चिल्ड्रन फिल्म देख करके मोटिवेटेड होने के लिए. तो ये बड़ा फायदा हुआ सोसाइटी को. लेकिन परेशानी तो बहुत झेलनी पड़ी और अभी भी झेल रहे हैं परेशानी, क्योंकि विजन नहीं है हमारे
ब्यूरोक्रेट्स के पास। ये तो मैं आपको क्लियर कट बोलूंगा, क्योंकि आप ऐसा ऐसा समझ लीजिए कि किसी आईएएस ऑफिसर को आप आर्ट एंड कल्चर और सिनेमा का लीडर बना देते हैं। मान लिया कि आप मुझे एक स्मार्ट, एक अच्छा डायरेक्टर और विजनरी पर्सन होने के कारण या होने के नाते आप मुझे किसी हवाई जहाज में पायलट की सीट पर बिठा देंगे, और मैं अगर हवाई जहाज उड़ाने लगूं तो क्या परिणाम होगा? यही होगा ना कि क्रैश हो जाएगा, जैसा कल हुआ केरल में। नहीं, केरल में तो पायलट चला रहे थे, लेकिन एक बात बोल रहा हूं। तो वैसा ही हो रहा है कि अब ब्यूरोक्रेट को कमान संभालने दे दी जाती है कला संस्कृति की। उनको एबीसीडी नहीं मालूम है सिनेमा का, सिनेमा कैसे बनता है। अब वो सिनेमा जब कैसे बनता है और सिनेमा क्या होता है उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, तो वो उसका डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? ट्रू, वेरी ट्रू। सो द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क अगेन कि हमारी ये जो फिल्म फेस्टिवल जब से कंडक्ट होने लगी है 2018 से, तब से लोगों में जज्बा बन गया है कि अगर हम अच्छी फिल्म बनाते हैं तो हमें अवार्ड मिलेगी झारखंड फिल्म फेस्टिवल की। सर, तो जिस तरीके से हम देखते हैं साउथ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में और भोजपुरी इंडस्ट्री, अब बॉलीवुड को हटा देते हैं, साउथ इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से प्रोग्रेस होती है, जिस तरीके से फिल्म्स डेवलप होती हैं, वहाँ की फिल्मों का नाम होता है हर जगह पे, तो झारखंड की फिल्में उस तरीके की नाम नहीं पाती है। तो सर, आप कैसे प्लान कर रहे हैं कि झारखंड की भी फिल्म उतनी ही पॉपुलर हो जितनी भोजपुरी इंडस्ट्री और साउथ इंडस्ट्री की होती है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। ये बहुत ही दुखदाई विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरे देश में, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, अपना अपना आर्ट है और ट्रेडिशंस है, और उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। और आपको ये देखिए, पंजाब में पंजाबी फिल्में, गुजरात में गुजराती, तमिल में तमिल फिल्में, चेन्नई में तेलुगु फिल्में, वहाँ आंध्रा में, तो इस तरह जितनी भी फिल्में हैं, मराठी, महाराष्ट्र में मराठी फिल्में बड़े लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर बनती हैं और अच्छे बजट में बनती है और अच्छी कमाई करती है। भोजपुरी भी बहुत अच्छा चल रहा था, भोजपुरी अभी थोड़ा सा गड़बड़ाया है, लेकिन ठीक है, बिजनेस के मामले में ठीक जा रहा है। झारखंड का हाल ये है कि हमारा झारखंड का जो आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारे झारखंड में ही 14-15 तरह की भाषाएं बोली जाती है, 14 तरह के ट्रेडिशंस हैं, खान पान है, रीति रिवाज हैं, भाषाएं हैं। Absolutely right. नागपुरी, पचपरगनिया, हो, खोटा, कई तरह की भाषाएं हमारे, संथाली। लेकिन हमारे यहाँ फिल्में उस स्टैंडर्ड की नहीं बनती हैं जो हम ग्लोबल फील्ड में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके दिखा सकें। यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड में भी झारखंड की फिल्में अभी तक ली नहीं जाती हैं। भोजपुरी फिल्में जा रही हैं, लेकिन झारखंड की भाषाई जो फिल्में हैं वो नेशनल अवार्ड में, गवर्नमेंट के यहाँ से नेशनल अवार्ड होता है, उसमें भी हम नहीं जाते हैं। चलिए, इसके पीछे फिर वही कारण है जो मैंने आरोप लगाया था, ब्यूरोक्रेसी। एनीवे, हमें नजरअंदाज किया गया, झारखंड को इग्नोर किया गया। लेकिन अभी जो स्थितियां आ रही हैं, कई लोग, कई फिल्म मेकर्स, कई फिल्म डायरेक्टर्स जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करके सिनेमा स्कूल से, फिल्म स्कूल से उन्होंने एक प्रशिक्षण प्राप्त करके और अभी रांची में या झारखंड में वो फिल्म बना रहे हैं और उसी स्टैंडर्ड की फिल्में बनने की बात हो रही है। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इसमें प्रमोशन में आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना होगा। सिर्फ फिल्म पॉलिसी बना करके वेबसाइट पर लगा दिए और आपने कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया, मतलब आपने ऐलान तो कर दिया और एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। फिल्म बोर्ड का जो मैं मेंबर हूं, तो उस मामले में भी मैं आपको कहूंगा कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ठंडे बस्ते में है। तो अगर यहाँ पर लोकल फिल्म मेकर्स को कोऑपरेशन मिलेगा, गवर्नमेंट का सब्सिडी का प्रावधान आसान होगा, फिल्मों की शूटिंग आसान होगी, जो यहाँ के सिनेमा हॉल्स हैं, जो यहाँ के मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनमें मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि आपको 1 शो 2 शो नागपुरी फिल्मों का, संथाली फिल्मों का, खोटा फिल्मों का रखना ही होगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा सिनेमा चलाने का।
फिर झारखंड के कस्बे में, छोटे छोटे शहरों में सिनेमा हॉल खोलने के लिए स्टार्टअप प्लान किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, बैंकों से फाइनेंस किया जाए, जहां हम लोग 100 सीटर, 200 सीटर, 50 सीटर छोटे छोटे सिनेमा हॉल बना करके चला सकें, तो उससे रोजगार भी मिलेगा और फिल्मों का डेवलपमेंट भी होगा। बिल्कुल सही सर, ये प्लान बिल्कुल जबरदस्त है सर। तो जैसा कि आपने मेंशन किया सर एक टर्म सब्सिडी, सर उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी कि बाहर के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, अनुपम खेर जी हो गए, प्रकाश झा सर हो गए, महेश भट्ट जी हो गए, उन्होंने भी आकर हमारे झारखंड, रांची में या कई जगहों में शूटिंग करी है ताकि उन्हें सब्सिडी मिले। तो सर क्या हमारे लोकल टैलेंट एक्टर्स को या एक्ट्रेस को वो जगह मिल पाई है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी उस फिल्म में? देखिए, बीइंग ए मेंबर ऑफ झारखंड फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड, मैं जानता हूँ कौन कौन सी फिल्में आई हैं और चुनी गई हैं, किन किन को सब्सिडी मिली है या मिलने वाली हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर बॉलीवुड के लोग आकर के अपनी फिल्में बना करके, और जो सरकार की पॉलिसी है, जो प्रावधान है, उसके अनुसार उन्होंने सब्सिडी ले ली। राइट। हमारे झारखंड के जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने अप्लाई तो किया, जब उनका अप्रूवल आया उन्होंने शूटिंग नहीं की, फिल्म ही नहीं बनी। कुछ लोगों ने फिल्में बनाई हैं और उनका प्रदर्शन हुआ है कमेटी के सामने, और वो सब प्रोसेस में है। अभी मार्च के बाद ये कोरोना काल में सब थोड़ा रुक गया है, लेकिन अभी झारखंड की फिल्मों को भी सब्सिडी मिलने वाली है, लेकिन अभी तक किसी को मिली नहीं। सर तो एक मायने में कहा जाए तो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स आते हैं, फिल्म मेकर्स आते हैं और झारखंड के सिर्फ पैसों को ले जाते हैं, ना कि इनके टैलेंट को ले जाते हैं। श्रेया, थ्रू सम एक्सटेंट यू आर राइट, थ्रू सम एक्सटेंट यू आर रॉन्ग। एक्चुअली क्या है कि फिल्म पॉलिसी क्यों बनाई गई, सब्सिडी क्यों दी जाती है? सब्सिडी इसलिए दी जाती है किसी भी राज्य के द्वारा या देश के द्वारा कि बाहर से लोग आए और हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे स्टेट में पैसा खर्च करें, हमारे जो यहाँ के संसाधन हैं उनका उपयोग करें और यहाँ के कलाकारों को भी जगह दें। लेकिन फिल्म पॉलिसी में कुछ प्रावधान गलत बन गए, जिसको सुधारने के लिए मैंने कई बार आवाज उठाई, और उसमें जैसे कि मैंडेटरी किया जाता है कि कम से कम 50% जो क्रू मेंबर है, 50% जो कलाकार हैं वो झारखंड के होने चाहिए। जो संसाधन आपको यूज करने, जैसे कैमरा है, लाइट है, ट्रॉली है, ड्रोन है, वो हर चीज आपको झारखंड से लेना होगा और उसकी बिलिंग दिखानी होगी आपको कि आपने झारखंड से लिया है, हमारी टैक्सियां यूज करनी होगी। लेकिन हुआ क्या, वो सारी चीजें ट्रक पर लोड करके मुंबई से चले आए, कलकत्ता से चले आए और उन्होंने अपनी शूटिंग कर ली। हमारे लोगों को सिर्फ मोहरा बनाया, काम चलाओ काम कराया और चलते बने। ये कमी पॉलिसी की थी। फिर मैं आपको अगले इस जवाब में भी यही कहूंगा कि देयर इज लैकिंग फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी साइड। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज हमारे लीडर्स, हमारे नेता, हमारी सरकार पॉलिसी बना देती है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन करना वो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। ब्यूरोक्रेट्स अगर डेडिकेटेड नहीं होंगे तो कोई काम ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और यही हुआ। सर इसके गवाह शायद वो सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जो झारखंड फिल्म्स करते करते ही चाहते हैं उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिले, और झारखंड शायद उन्हें प्रोवाइड भी कराती है, पर जो वहाँ के फिल्म मेकर्स होते हैं, मुंबई के, बॉलीवुड के, वो लोग उनको नहीं लेते हैं, तो इनकी सराहना कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाती है। तो सर ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि हमारी पॉलिसी चेंज की जाए, हमारी ब्यूरोक्रेसी चेंज हो, इसकी सारी टेक्निक्स जो भी जहाँ पर लैक हो रही है उससे चेंज पर गौर फरमाया जाए। इसी के साथ सर हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। सर एज की बिग एक्टर्स कम्स लाइक previously in 2019 we saw Arbaz Khan, Rajesh Jaish. In 2018 we saw actors like legend Akhil Mishra ji, Rajpal Yadav and all the people. तो सर how you manage their charge, जो वो चार्ज लेते होंगे विजिट करने के लिए फिल्म फेस्टिवल में, तो वो क्या चार्ज लेते हैं और आप उन्हें गवर्नमेंट दिलाती है या प्राइवेट चार्ज लेने होता है? देखिए, श्रेया सिंह राजपूत SSR, हमारा ऐसा नाता है बड़े बड़े लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ, मेरा पर्सनली, कि हम मेरे से कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। हम लोग किसी को कोई 1 रुपया नहीं देते हैं।
बस हमारा ये कमिटमेंट होता है कि आप एक बाराती बन के आ रहे हैं, हम आपको मान सम्मान देंगे, आपको बढ़िया हॉस्पिटलिटी देंगे, अच्छे होटल में ठहराएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे और घुमाएंगे फिराएंगे, सम्मान देंगे, आपकी फोटोएं छपवाएंगे अखबार में और मीडिया के सामने आपका इंटरेक्शन कराएंगे जी। और आते हैं। हैं तो अब बहुत सारे लोग आए, लंबी लिस्ट है। ट्रू। तो सर ये तो हमारी हो गई बॉलीवुड की कहानी, जो इंटरनेशनली सर जो आते हैं उनका क्या होता है? देखिए, पिछली बार 2018 में हमारे यहाँ रशिया से, सिंगापुर से और अफगानिस्तान, 3 कंट्री से लोग आए थे। तो वो लोग अपने खर्चे से दिल्ली आए थे और दिल्ली से हमने उनको रांची से दिल्ली जाने का टिकट दिया था। बाकी लोगों को भी टिकट देते हैं हम, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम फॉरेन से जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट देने का अफोर्ड नहीं कर सकते। 2019 में हमारा फोकस कंट्री था इजराइल, और इजराइल से 2 बड़े डायरेक्टर डैन वॉलमैन और एक एक्ट्रेस भी आई थी, तो उनको हमने टिकट दिया था क्योंकि इजराइल एम्बेसी से हमारे पास रिक्वेस्ट आ गया था कि काइंडली प्रोवाइड देम टिकट। और उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट मांगा था, फिर हमने रिक्वेस्ट किया था कि हम इकोनॉमी का दे सकेंगे, फिर हमने इकोनॉमी का टिकट दिया था। वो टिकट थोड़ा महंगा पड़ा था, बस वही हम लोगों ने टिकट दिया, बाकी ना हमें कोई खर्चा नहीं लगता। इस बार मैं आपको बताता हूँ कि 48 कंट्रीज से 500 से ज्यादा फिल्में आई हैं 2020 में, और सारे विदेशी जो हैं, चाहे वो एस्टोनिया से हो, बुल्गारिया से हो, पेरिस से हो, ब्राजील से हो, मैक्सिको, स्पेन, सिंगापुर, मतलब अब किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, मैं बोलूँगा यस। कुछ तो ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नाम मैं जानता भी नहीं था, बाद में मैंने गूगल सर्च किया कि ये कंट्री भी है। एनीवे, उन लोगों ने भी झारखंड आने की इच्छा जाहिर की, और जब हमने ये उनको मेल में जवाब दिया कि वी आर ओनली प्रोवाइडिंग यू स्टे एंड फूड इन झारखंड in the location of Jharkhand International Film Festival 2020, they agreed, they became happy. Yes, we will come. Wow, that's very strange. But it is our bad luck that due to this world pandemic, COVID-19, we are unable to invite them here. True. Because इससे क्या होता कि हमारा टूरिज्म बढ़ जाता। Right. अगर 50 देशों से लोग आएंगे, 100 लोग भी आएंगे, 200 विदेशी भी आएंगे, और अगर हमारी जगह उन्हें पसंद आ जाएगी तो एक आदमी जाकर 50 लोगों को बोलेगा, यार व्हाई यू आर गोइंग ओनली कश्मीर एंड वाराणसी एंड केरला, यू गो टू झारखंड। तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये हमारा पहला जो मिशन है फिल्म फेस्टिवल का, जो एजेंडा है, उसमें ये भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है। तो अभी नहीं, आगे हम लोग इसको फुलफिल करेंगे। जी बिल्कुल। तो सर आप कह रहे हैं कि 2020 और भी ग्रैंड होती कंपेयर टू 2018 एंड 19, क्योंकि हमारे इंटरनेशनली 50 फिल्म्स कंपैरिजन में ज़्यादा आई हैं इस बार, तो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वी कैन नॉट फुलफिल दैट। तो सर एज आई सी यू एंड एज आई हैव हर्ड कि आपका ड्रीम है कि आप वर्ल्ड टूर करें। सर तो एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये एक ऐसे पर्सन है जो काफी खुश मिजाज के हैं जी, जैसे ये इनकी उम्र दर्शाती है, ये बिल्कुल वैसे नहीं। अच्छा, कितनी उम्र दर्शाती है, क्या लगता है आपको? आप मेरा क्या एज आप गेस करती हैं? सर आपसे एक कंडीशन रहेगी, अगर मैं आपसे पूछूं ये सवाल तो आप दोबारा मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ हाँ बताइए। तो सर मुझे लगता है कि आप अराउंड 45 to 50 के। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कम एज बोला मेरा। वाओ, आई एम सो यंग। एक्चुअली आई एम 59। Oh Yeah, my I am God. 59 and it is my real age and मैं जो है मैं जीता हूँ 25 साल के छोकरे की तरह। बिल्कुल सर। मैं वैसे जीता हूँ। सर 59 की उम्र में व्यूअर्स ये वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं ऑल अलोन, कि किसी को भी साथ नहीं ले जाना चाहते। इन्होंने विजिट भी करा है अमेरिका, यूएस, सारी जगहों पर ये मुझे बता रहे थे कि इनका बस एक ही सपना है कि वो वर्ल्ड टूर करें। इस उम्र में लोग हरिद्वार जाते हैं और ये वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा ख्वाब, ऐसी दरिया दिली कहाँ से लाते हो आप? यही तो जीने की असली वजह है मेरी, कि मैं एक जिंदा दिल इंसान हूँ और मैं हमेशा युवा बनकर जीता हूँ। ठीक है,
मैंने पूरी दुनिया में अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्रीज, मॉरिशस गया हूँ, लेकिन मैं अभी तक स्विट्जरलैंड नहीं गया हूँ। मैं मैक्सिको मैंने नहीं देखा। बुल्गारिया जाना चाहता हूँ। बुल्गारिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो स्पेन है, मैक्सिको है, तो ये कोस्टारिका है। कोस्टारिका से भी लोग आए थे हमारे यहाँ फिल्म फेस्टिवल में। तो इन सब, कनाडा है, तो ये सब, इन सब जगहों पे मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने वर्ल्ड टूर किया तो वो मेरे को लगा कि मैं सचमुच में दुनिया देख रहा हूँ, और दुनिया में जो ईश्वर ने मुझे भेजा है उसका जो प्रयोजन है वो मेरा सफल हो गया। नहीं तो आप तो कुएं के मिड़क बन के रांची में पड़े रहिए, दाल भात रोटी चोखा खाइए। हाँ। नहीं, मैं हाफ पैंट पहन के पीछे पिट्ठू लगाकर अपना डांस करते हुए और पूरा घूमता रहा अकेला। तो वो जो एक आनंद है, और उससे जो आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है या जीवन बढ़ता है। मैं एक एक दिन में 20-20 किलोमीटर वॉक करता था, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को में। तो और अलग अलग अमेरिका के अलग अलग सिटीज में अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह का सोच। सर, एज इन एवरी सेक्टर में जो इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारे इंडिया में, वो होती है गर्ल्स। तो सर, ऐसी पर्सनली पूछ रही हूँ कि गर्ल्स को कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में काम करने के लिए, और उन्हें उस तरीके का कैसा बेनिफिट होता है, अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट बोथ, हाउ गर्ल्स गेट? देखिए, ये सवाल भी बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है आपका। लड़कियों को मौका कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे झारखंड में या ऐसे इन स्थानों की लड़कियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने का। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी देयर आर सो मेनी स्कोप्स इन द इवेंट ऑफ झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हाउ? हम जब ये कार्यक्रम करते हैं उसके 2 महीना 3 महीना पहले से ही हम रांची के डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने आदमी को भेज करके वहाँ से कुछ लोगों को, कुछ स्वयं सेवियों को आप कह सकते हैं, तो कुछ लोगों को हम लोग बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, लड़कों को, लड़कियों को भी। लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लड़कियां अपने काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉय। ये बात तो है। तो हम लड़कियों को, अब उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि जो फ्रंट, जो रिसेप्शन टेबल है उसको संभालना, रजिस्ट्रेशन जो प्लान है, डेस्क है, उसको संभालना, आर्टिस्ट जो हमारे गेस्ट आए हैं उनको बिठाना, सारे सिस्टम को उनको उनके कंट्रोल में दिया था। कहाँ, जहाँ पर कैटरिंग का है एरिया, वहाँ पर किसको किधर खाना है, किसको किधर नहीं खाना है। तो ये सारा मैनेजमेंट समझने से और इतने सारे इंटरनेशनल लोगों से जब उनका इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन विद इंटरनेशनल पीपल एंड लीजेंडरी पर्सनालिटीज जस्ट रिजल्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी। ठीक है, इससे उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और कई लड़कियां तो मैंने देखा कि वो रेगुलर कंटिन्यू करती हैं। 2018 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और उसका फिर उन्होंने 2019 में भी कांटेक्ट किया हमारे लोगों को कि हम इस बार कब हो रहा है और हम करना चाहते हैं। और हम लोग उनको कुछ पेमेंट भी करते हैं, और उनका डिनर लंच वगैरह सब होता है, और उनको कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट भी किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको ट्रेनिंग मिलती है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। सपना देखने का जो सपना देखने की जो एक प्रक्रिया है वो प्रबल होती है, वो बड़ा सपना देखते हैं। ट्रू, ये होता है। बेसिकली ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और ड्रीम और भी ज्यादा बड़ा देखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हाँ, आप सपने बड़े देख सकते हैं, क्योंकि आप उन लोगों को देखते हैं, इंटरनेशनल पीपल गैदर्ड इन वन लैंड कॉलेज झारखंड रांची। तो बहुत बड़ी बात होती है, अगर रांची में ही आपको इतने बड़े हस्तियों से मुलाकात हो जाए, बातें हो जाए, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बेशक बढ़ना ही है। जी बिल्कुल सर, सहमत हूँ आपसे। उनके मन में बहुत ही इज्जत हमारे देश के लिए। सर, ये सवाल मेरे मन में उठता है, ऐसा क्यों सर? क्या ऐसा है वहाँ पर फॉरेन्स में, क्या हमारी सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि इतनी सारी इज्जत वो हमें देते हैं? देखिए, ऐसा तो कोई ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी कहानी। जी। एक शहर है अमेरिका में,
लास वेगास नाम सुना होगा आपने। जी। लास वेगास जो है वो रात को ही नाचता है, जलता है, चलता है, खेलता है, जगमगाता है। मैं रात को एक नाइट क्लब में पहुंचा। ड्राइवर ने मुझे गाड़ी रोकी, मेरा दरवाज़ा खोला, मैं बाहर आया। करीब 20-25 बाउंसर खड़े थे। अब आप सोचिए, जो बाउंसर्स खड़े हैं ब्लैक काले काले ड्रेस में, मोटे ताजे लंबे चौड़े, उनको क्या पड़ी है भारत कहाँ है, हिंदुस्तान कैसा है, कौन है। लेकिन मैंने ऐसे ही बाय द वे बोला, हाय फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम सरप्राइज्ड एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस। और सब लोग बोलने लगे, oh Modi. I was so happy that time and so proud. I was feeling so proud that time. और फिर उन लोगों ने मेरा जो फॉर्मल चेकिंग था वो किया। फिर मेरे को सब लोग कवर करते हुए लेके अंदर गए और अंदर वह जो गेस्ट जो रिसीव कर रही थी मैडम, उनको रिसीव कराया मेरे को कि ही इज आवर स्पेशल गेस्ट फ्रॉम इंडिया। और सिर्फ एक इंडियन होने के कारण उन्होंने मेरा स्पेशल केयर लिया वहाँ पर। सर आप यहाँ बैठिए, sir, what you will take, what drink you want, what snacks you want, are you vegetarian? Yes, I'm Indian vegetarian. तो ये सब जो चीजें हैं, तो अगर आपको विदेश में जाकर सम्मान मिलता है तो इसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री को जाता है जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे वेंचर्स किए वहाँ पर। ये है। सो मोदी जी ने काफी सारे रिलेशन बनाए हमारे, जैसा कि सभी कहते हैं कि हाँ मोदी जी भारत में कम विदेशों में ज्यादा रहते हैं। तो देखिए आज इनका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर है। बट खैर ये शो उस पॉलिटिक्स का नहीं है, बट स्टिल हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पर हमें बहुत बहुत ज्यादा गर्व है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऋषि सर हमारे स्टूडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।